Okay. Chalo. Let's start with homework sum. Okay. Sum number 10 was for homework. So I'm discussing the entries one by one with working. Okay. If you have any doubts, please stop me and ask. Okay. Yeah. Revision entries of TD and CD. Okay. Purchase goods of 5,000 from Ajay at 10% TD and 5% CD. So is this on cash or credit? It's on credit. So which discount are you supposed to take? Trade. Only trade discount. Only trade discount. Barabar? So 5,000 pay you take 10%, that is 500, and net amount is 4,500. Entry should be purchase account debit to Ajay's account 4,500. Entry should be purchase to Ajay 4,500. Is that clear? TD कभी books में record नहीं होता. Okay. So purchase to Ajay 4,500. Second one, purchase goods of 5,000 at 10% TD and 5% CD. Now this transaction is on cash basis. Cash. Because कैश बेसिस पे है क्योंकि पार्टी का नाम नहीं दिया है, उधर ही खत्म हो गया. पहला ही कंडीशन वायलेट हो गया तो आपका कैश ट्रांजैक्शन हो गया, राइट? कैश ट्रांजैक्शन है तो दोनों डिस्काउंट्स आएंगे आपके, टीडी एज वेल एज सीडी. तो 5,000 पे 10% सब्ट्रैक्ट किया तो यू गेट 4,500, एंड 4,500 पे यू फर्दर सब्ट्रैक्ट 5% which is 225. So your net amount is 4,275. Net amount is 4,275, and entry should be purchase account debit to cash account to discount received account. Is that right? Purchase account debit would be 4,500, to cash would be 4,275, discount received would be 225. Correct? मिल रहा है घर वाले? पहले दो clear? Yes, sir. Purchase to Ajay and purchase to cash to discount. If you don't get an answer or entry, please stop me and ask. Okay. Sold goods of 10,000 rupees to Vijay at 5% TD and 2% CD. So now you are selling to Vijay. Okay, party का नाम दिया है और cash के बारे में कुछ नहीं दिया है. So it is on credit basis. Credit basis पे तो which discount should come? Only trade discount. Amount of goods, gross amount was 10,000. 10,000 pay you take 5% TD, which is 500. So net amount is 9,500. Is that right? 9,500. और CD लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्रेडिट पे था. तो आपकी एंट्री हो जाएगी विजय टू सेल्स 9,500. Is that right? विजय टू सेल्स 9,500. Next one, sold goods for cash worth 4,000 at 10% TD and 2% CD. Now sold goods for cash दे ही दिया है, पार्टी का नाम भी मिसिंग है, फॉर कैश भी आ गया, तो क्लियर इंडिकेशन दैट इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन. So if it is on cash basis, you should take both the discounts. Your gross price is 4,000. 4,000 पे 10% is 400. Net price is 3,600. 3,600 pay you take 2% CD, which is 72 rupees. So you get your answer to be 3,528. 3,528. 3,528 आपका आंसर आएगा और एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. Cash is 3,528, discount allowed is 72, to sales would be 3,600. Is that clear? Clear with the first four transactions, घर वाले? चलो बढ़े आगे. Fifth one, purchased goods of 7,000 at 10% trade discount. पार्टी का नाम दिया है कहीं पे भी? No party's name mentioned. No party's name mentioned. That means it's on cash basis. Now cash basis पे वैसे तो दोनों discounts आते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एज वेल एज कैश डिस्काउंट, लेकिन यहाँ पर तो सीडी का मेंशन ही नहीं किया है, तो सीडी लेने की जरूरत नहीं है. जो डिस्काउंट मेंशन किया वही लेने का, जो नहीं दिया वो अज्यूम करने का कि नील है, जीरो वैल्यू. बराबर है? तो 7,000 रुपीज पे यू टेक 10% विच इज 700. सो यू गेट योर नेट प्राइस टू बी 6,300, एंड देन यू स्टॉप बिकॉज देयर इज नो सीडी. सो योर एंट्री शुड बी I think it is purchase. So purchase account debit to cash account 6,300. Purchase account debit to cash account 6,300. Is that clear? Purchase to cash 6,300. Okay. No CD,
तो डिस्काउंट रिसीव्ड की कोई एंट्री दिखने वाली नहीं है. नेक्स्ट वन, sold goods of 4,000 at 5% CD, the amount received via debit card. So it's on cash basis, right? So TD CD दोनों आना चाहिए, लेकिन यहां पर ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया है. ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया तो assume it is nil. So you take only cash discount. So आपका gross price होगा 4,000. 4,000 पे TD is nil. So net price is also 4,000. And 4,000 पे you take 5%. 5% which is 200. So net amount is 3,800. आपका एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट 3,800, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200, to sales account 4,000. Bank discount allowed to sales. Is that clear? 3,800, 200 and 4,000. चलो पहले 6 तक समझा सबको? All clear? Any doubts? 7th one. Purchase goods of 15,000 at 2% CD via debit card. अभी वापस डेबिट कार्ड दे दिया, so it's a cash transaction. It's a cash transaction, so both the discount should come. लेकिन दोनों डिस्काउंट्स दिए ही नहीं है, टीडी दिया ही नहीं है, तो assume it is nil. टीडी दिया ही नहीं है तो assume it is nil. So आपका कितना है ग्रॉस प्राइस? 15,000. 15,000 पे टीडी 0 है, तो नेट प्राइस भी 15 होगा और सीडी होगा 2% which is 300 rupees. So net amount is final amount, cash price is 14,700. 14,700 आएगा आपका आंसर. So entry should be purchase account debit to bank account to discount received account, right? Purchase account debit 15,000 to bank 14,700 to discount received 300. Purchase to bank to discount received. Purchase to bank to discount received. 15,000, 14,700 and 300. Next one, purchase goods from Kapil for 10,000 at 10% TD and 2% CD. So party का नाम दिया है, yes. Is there anything mentioned about cash? No, no mention of cash. So it's on credit basis, right? So credit basis पे तो कौन सा डिस्काउंट आना चाहिए? Only trade discount should come. So gross price आपको दिया हुआ है 10,000. 10,000 का 10% होता है 1,000. So net price is 9,000. आपकी एंट्री बननी चाहिए purchase account debit to Kapil's account 9,000. Purchase to Kapil 9,000, need not take CD because credit पे हो रहा है. Next one, 9th one, purchase goods of 6,000 at 10% TD and 1% CD. This is on cash basis, right? 9th one is on cash basis क्योंकि पार्टी का नाम दिया है, sorry, पार्टी का नाम ही नहीं दिया. पार्टी का नाम ही नहीं दिया तो कैश बेसिस पे हो गया. कैश बेसिस पे हो गया तो दोनों डिस्काउंट्स लेने आपको टीडी एज वेल एज सीडी. तो आपका ग्रॉस प्राइस है 6,000. 6,000 पे यू टेक 10% which is 600. नेट प्राइस इज 5,400. 5,400 पे यू टेक 1% सीडी which is 54. नेट अमाउंट इज 5,346. 5,346. आपकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. परचेज अकाउंट डेबिट 5,400 to cash 5,346 to discount received 54 rupees. Is this clear? Purchase to cash to discount received. 10th one, sold goods of 25,000 to Rohit at 5% TD and 2.5% CD. रोहित का नाम दिया है, yes. कैश के बारे में कुछ दिया है, नहीं. So both the conditions fulfill, so the transaction is on credit. If it is on credit, then which discounts are you supposed to take? Only TD. So Rohit 25,000 gross, उस पे 5% is 1,250 and net price is 23,750. CD लेने की कोई जरूरत नहीं है. आपकी एंट्री बननी चाहिए रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 23,750. रोहित थ्रू सेल्स 23,750. रोहित टू सेल्स 23,750. घर वाले समझ रहे हैं? First 10 transactions are clear? Yes, sir. All of you. Next one. 11th one. Sold goods of 5,000 to Sachin for cash at 10% TD and 2% CD. Is this transaction on cash or credit? It's on cash basis. क्योंकि पार्टी का नाम तो दिया है, ठीक है, लेकिन for cash दे दिया. Second condition violated. So for cash है तो दोनों डिस्काउंट्स आना चाहिए आपका. So पहले तो आपका ग्रॉस प्राइस होगा सचिन का 5,000. 5,000 पे यू टेक 10% TD which is 500. Net amount is 4,500.
4,500 पे you take 2.5% CD, which is 2.5. अच्छा 2%. अच्छा रोहित का 2.5 2% था. Okay, so 4,500 का 2% is 90 rupees. 90 rupees. So net price is 4410. 4410. Is that clear? आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट discount allowed account debit to sales account. Cash account debit 4410, discount allowed 90 to sales 4,500. Is that clear? So cash discount allowed to sales 4410, 90 and 4,500. Next one, purchase goods of 10,000 at 5% CD via NEFT. NEFT दिख गया मतलब it's a cash transaction. Cash transaction मतलब दोनों डिस्काउंट आने चाहिए, लेकिन टीडी तो दिया ही नहीं है. टीडी दिया ही नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि वो नील है. आपने परचेज किया हुआ है, आपका ग्रॉस प्राइस इज 10,000. 10,000 पे टीडी 0 है तो नेट भी 10,000, उस पे 5% सीडी ले लो विच इज 500. सो फाइनल आंसर इज 9,500. सो 9,500 का परचेज है, डिस्काउंट भी है, तो परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश 9,500 टू डिस्काउंट रिसीव 500. सॉरी बैंक. Purchase account debit 10,000 to bank 9,500 to discount receipt 500. बराबर. NEFT है तो you have to use bank. So purchase to bank to discount receipt. Is that correct? Purchase to bank to discount receipt 10,000, 9,500 and 500. Next one, 13th one. Purchased goods of 12,000 at 10% TD, 5% CD. Issued a check for the same. चेक दिया है मतलब बैंक यूज करना है, कैश ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन मतलब दोनों डिस्काउंट आना चाहिए. करेक्ट. So 12,000 पे 10% is 1,200. Net price is 10,800. 10,800 पे 5% is what? 540. The net price is 10,260. Final price 10,260 cash price. आपकी एंट्री बनेगी परचेज टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड. परचेज में आएगा 10,800, टू बैंक में आएगा 10,260 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा 540. इज दैट करेक्ट? घर पे परचेज टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव. बढ़िया. 14th one, purchase goods of 10,000, 10% TD, 5% CD from Vishal, paid half the amount by RTGS. आधा ही दिया है, so it is partly cash, partly credit. तो पहले तो आपका ग्रॉस प्राइस देखना है आपको 10,000, राइट. 10,000 पे क्या करना है? 10% TD माइनस करना है. So 1,000 गया, बचा 9. 9 का आप क्या करते हो? दो पार्ट्स कर लेते हो, आधा कैश आधा क्रेडिट. सो आई थिंक 4,500 इज कैश एंड 4,500 इज क्रेडिट. जो कैश पार्ट है 4,500, उस पे you'll take 5% which is 225 and you'll get your final cash price to be 4,275. Now what will be your combined entry? पूरी combined entry बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना. It will be purchase account debit to Vishal account, to bank account, to discount received account. Purchase account debit would be 9,000, to Vishal account would be 4,500, to bank will be 4,275, to discount received would be 225. Okay, one second. Purchase account debit 9,000, to Vishal 4,500, to bank 4,275, to discount received 225. Okay. Sold goods of 6,000 to Vasant at 10% TD, 5% CD, received 1/3 of the amount. Wapas, how is the transaction being done? It is partly on cash, partly on credit. Partly on cash, partly on credit. So पहला step क्या करने का? 6,000 rupees पे. I skipped 15. Oh, sorry. 15th one. Sold goods of 6,000 at 10% TD and 2% CD, received a check for the same. Okay, received a check for the same. So this is entirely on cash basis. So both the discount should come. Okay, आपका discounts होगा पहले 6,000 पे you take 10% TD which is 600, net price is 5,400. उस पे you take 2% CD 108 and net price is 5,292. 5,292. आपका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट 5,292, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 108 to sales 5,400. Is that correct?
Bank discount allowed to sales 5292,108 and 5,400. 16th one, sold goods of 6,000 to Vasant at 10% TD, 5% received one third of the amount. This is partly cash, partly credit. पहला स्टेप आप टीडी ले लो, टीडी तो दोनों पे आता है, कैश और क्रेडिट. तो 6,000 पे you take 10%, which is 600. So net price is 5,400. 5,400 का आपको दो टुकड़ा करना है. 1,800 is cash and 3,600 is credit. Then on that 1,800 you take 5% CD, which is 90 rupees. So net price is 1,710. 1,710. अब आपकी पूरी कंबाइंड एंट्री बोल रहा हूं. कंबाइंड एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 1,710, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 90 रुपीज, वसंत अकाउंट डेबिट 3,600 टू सेल्स 5,400. कैश 1,710, डिस्काउंट अलाउड 90, वसंत 3,600 टू सेल्स 5,400. Is this clear? Got it? Sir, cash account to sales account. Cash discount allowed, Vasant to sales. Partly cash, partly credit. I'm talking about 16th one. Partly cash, partly credit. 130 दिया है cash. समझा प्रहलाद? हाँ सर समझ. Okay. बढ़े आगे. 17th one. Purchase goods of 20,000 from Lobo at 10% TD, 1% CD, paid 1/4 of the amount by NEFT. So 1/4 by NEFT म्हणजे again it is partly cash, partly credit. Partly cash, partly credit है, तो आपका पहले तो gross amount लिख देना. आपका gross amount is 20,000. 20,000 पे you take 10%, which is 2,000. So net price is 18,000. 18,000 पे you take 1/4 and 3/4. 18,000 का 1/4 is 4,500 and 3/4 is 13,500. बराबर है? And then on that 1/4, 4,500 rupees, you take 1% CD, which is 45, and net amount is 4,355. Oh, sorry, 4,455. 4,455. 4,455. आपका एंट्री बनेगा परचेज अकाउंट डेबिट to bank, to discount received, to Lobo. Purchase account debit should be 18,000. To bank 4,455. To discount received 45. And to Lobo 13,500. Is this clear? Once again, purchase account debit 18,000. To bank 4,455. To discount received 45. To Lobo 13,500. Sorted? So that was partly cash, partly credit. Then next one, sold goods of 9,000 at 10% TD and 2% CD to Vijay, received half the amount by check. Again, this is also partly cash, partly credit. पहले तो 9,000 पे take 10%, which is 900. Net price is 8100. 8100 का आप दो टुकड़ा कर दो, हाफ हाफ है, तो 4050 कैश एंड 4050 क्रेडिट. 4050 जो कैश पार्ट है उस पे टेक 2%, which is 81. सॉरी, 4050 का 2% is 81 एंड नेट प्राइस इज 3969. आपका एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, विजय अकाउंट नहीं, कौन है ये? विजय. बैंक डिस्काउंट अलाउड विजय टू सेल्स. बैंक में 3969, डिस्काउंट में 81, विजय में 4050, टू सेल्स में 9100. बराबर. 8,000. एक हाँ ऑर्डर ऊपर नीचे करो कोई बात नहीं. 8,100, not 9,100. 8,100. Once again I'll repeat. It is Vijay account debit 4050, bank account debit क्योंकि चेक था 3969, discount allowed debit 81 to sales, that will be 8,100. ठीक है? Then next one, sold goods of 25,000. 19th one, sold goods of 25,000 at 20% TD to Vijay and received a check for 20% of the amount. So this is also partly cash, partly credit, but there is no CD. If there is no CD, then no need to take that, right?
सीडी है ही नहीं तो लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल. So 25,000 पे you take TD first, which is 20%, so that is 5,000. 5,000 subtract किया तो you get 20,000. 20,000 को डिवाइड करो 20% और 80%, which is 4,000 and 16,000. तो आपका एंट्री बनेगा अभी बैंक अकाउंट. आई थिंक यू आर सेलिंग राइट. हाँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड आएगा ही नहीं क्योंकि देयर इज नो सीड. तो बैंक अकाउंट डेबिट, देन विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. बैंक में आएगा 4,000, विजय में आएगा 16,000, टू सेल्स में आएगा 20,000. इज दिस क्लियर? सो बैंक विजय टू सेल्स, बैंक विजय टू सेल्स 416 and 20. 416 and 20. सीडी है ही नहीं तो लेने की जरूरत नहीं है. अगर सीडी नहीं है तो रिकॉर्ड भी नहीं होगा. सीडी है वही रिकॉर्ड होता है बुक्स में, सीडी नहीं है तो रिकॉर्ड भी नहीं होगा. Purchase goods of 10,000 at 10% TD, 3% CD from Rohit, paid 25% of the amount. This is also partly cash, partly credit. पहला स्टेप ग्रॉस प्राइस पे आपका 10,000 पे 10% ले लो TD, which is 1,000. Net price is 9,000. 9,000 का you do two parts, 1/4 and 3/4, which is 2,250 and 6,750. Then on that 2,250 you take 3%, which is 67.5, 68 rupees, right? 2,250 paid 3% is 67.5, that is 68. So net price you get 2,182. 2,182. 2,182 is your final price, cash price. आपकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित टू कैश टू डिस्काउंट. परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित टू कैश टू डिस्काउंट. परचेज में आपका अमाउंट होगा 9,000, टू रोहित में होगा 6,750, टू कैश में होगा 2,182, टू डिस्काउंट रिसीव्ड वुड बी 68. परचेज में 9,000, टू रोहित में 6,750, टू कैश में 2,182 and discount received 68. बहुत बढ़िया. We return goods of 1,000 to Rohit net. नेट में कुछ करना है? नेट में कुछ टीडी माइनस करना है? क्या बोल रहे हो घर वाले? नेट में टीडी माइनस करना है? नहीं करना है. नेट में कोई टीडी माइनस करने की जरूरत नहीं है. ग्रॉस होता है तो आप टीडी माइनस करते. नेट है तो वैसे का वैसे लिख दो. तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? रोहित टू परचेज रिटर्न्स 1,000. रोहित टू परचेज रिटर्न्स 1,000. अब नेक्स्ट वाला, वी रिटर्न गुड्स ऑफ 1,000 टू रोहित. ग्रॉस, ग्रॉस दिया तो क्या करना है? टीडी माइनस करना है, बिकॉज वी नेवर रिकॉर्ड ग्रॉस प्राइसेस एनीवेयर. सो इट विल बी 1,000 पे रोहित का टीडी. रोहित का कौन सा टीडी लोगे आप? 10%, which is 100. So net price is 900, right? So Rohit to purchase returns would be 900 this time. Rohit to purchase returns would be 900. Is this clear? Then बढ़े आगे. Sold goods of 15,000 at 10% TD and 2% CD to Vineet. Received 40% of the amount in cash. Again partly cash, partly credit. पहले 15,000 पे 10% ले लो, which is 1,500. Net price is 13,500. 13,500 का दो टुकड़ा, 40% and 60%. So I think 40% is 7,000, 5,400 and 8,100. 13,500 का 40%, 5,400 and 60% is 8,100. वो 40% जो है 5,400, उस पे you take 2% CD, which is 108. Net price is 5,292. 5,292 बराबर है. तो आपका पूरा एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, विनीत डेबिट टू सेल्स. कैश अकाउंट डेबिट 5,292, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 108, विनीत डेबिट 8,100, टू सेल्स 13,500. Is that correct? Cash account debit 5,292, discount allowed 108, we need debit 13,500 to sales. Sorry, we need debit 8,100 to sales 13,500. To sales 13,500. We need return goods of 200 net. Net में कुछ करना है? DDBD माइनस कोई जरूरत नहीं है. आपकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न टू विनीत. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू विनीत 200. सेम अमाउंट. सेल्स रिटर्न टू विनीत 200. And last, Vineet returned goods of 200 gross. तो आपको TD माइनस करना है किसका? विनीत का, which was 10%. So 20 rupees.
net price is 180. Entry is same. Sales return to Vineet 180. Sales return to Vineet 180. बोलो. Any doubts, घर वाले? All sorted. बद्दाने clear. Any doubts? Sir, एक सेकंड. हाँ हाँ और टीडी तो हमने ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर लिया था वो तो परचेज के वक्त. परचेज रिटर्न के वक्त ग्रॉस दिया, मतलब अभी तक वो परचेज रिटर्न वाला प्राइस पे टीडी माइनस नहीं किया. सपोज नोटबुक 50 रुपीज का था, 40 में खरीद के लेके आए, अब रिटर्न किया तो 40 में ही करोगे. 40 इज नेट, बट 50 रुपीज दे दिया है तो आप क्या करोगे? 10 रुपीज माइनस करोगे ना, फिर 40 में रिटर्न करोगे. सो ग्रॉस दिया है मतलब अभी तक टीडी माइनस नहीं, आपको करना पड़ेगा. ठीक है. और बोलो कितना मार्क्स टेस्ट में तने नहीं हाँ? आज सम्स कितना sums मतलब these entries TDCD का entries are generally for 1.5 2 marks. कभी बहुत बड़ा रहेगा तो 3 marks और GST वाला आएगा उसमें. यहाँ पे क्या आपको 4 अकाउंट्स होते हैं ना एक एंट्री में, विद GST करेंगे तो 6 से 7 अकाउंट आएंगे एक एंट्री में. दैट एंट्री विल कैरी 3 marks. वो सबसे बड़ा एंट्री. और बोलो. यस प्रहलाद, यू आर टेलिंग समथिंग. हाँ सर. सर वो लाइक 20 सेकंड सम में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लाइक ट्रांजैक्शन कैसा रहेगा? 20 सेकेंड सम में. हाँ 20 सेकेंड की 23rd? नहीं सर, 20 सेकंड. 20 सेकेंड तो सिंपल है. वी रिटर्न गुड्स ऑफ 1000 टू रोहित. रोहित टू परचेज रिटर्न और ग्रॉस दिया ना तो टीडी माइनस करो. रोहित का ऊपर देखो 10% टीडी है तो 1000 पे 10% सब्ट्रैक्ट कर दो, गेट 900. ओके सर, समझ. रोहित टू परचेज रिटर्न ग्रॉस दिया तो टीडी माइनस, ग्रॉस नहीं दिया है तो सेम वैल्यू. नेट दिया तो भी सेम वैल्यू. और बोलो. एनी अदर डाउट्स? कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू? अच्छा, लेट्स कंटिन्यू विथ सम नंबर 12. 12th सम हमने किया हुआ था टिल 15 ट्रांजैक्शन. बराबर है. 12th sum we had done till 15 transactions we had done. 15 transactions तक 12th sum किया हुआ था हमने. 16th one देखो. Paid salary to Mr. Ram. Paid salary to Mr. Ram. Sia, what are the two accounts? Paid salary to Mr. Ram. 16th one. Very good. Salary account and cash account. What should you debit and what should you credit? Very good. Write down all of you. Salary account debit to cash account being salary paid to Ram. किसी को लगता है यहाँ पे राम का नाम आएगा? Anyone feels राम का नाम आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए. टेस्ट में भी डाला था, काफी लोगों ने गड़बड़ की है, काफी लोगों ने मिस्टेक की है. टेस्ट में भी आई पुट द सेम थिंग. सैलरी टू रमेश, याद आ रहा है कुछ? टेस्ट में था सैलरी टू रमेश. पब्लिक ने क्या क्या लिखा है? रमेश कैश, सैलरी रमेश, रमेश क्रेडिट द गिवर, जो मर्जी आए. पता नहीं कौन बोल रहा था कान में बाजू में आके. कुछ भी लिखा है, कुछ भी. सैलरी एंड कैश, ओनली 2 अकाउंट. सैलरी एंड रमेश हमेशा कुछ आने वाला ही नहीं है, रमेश का नाम ही नहीं आएगा. याद है बताया था, व्हेनेवर यू पे एनी एक्सपेंस और रिसीव एनी इनकम, आपका रीजन क्या है? क्यों पैसे आ रहे हैं, क्यों पैसे जा रहे हैं? एक्सपेंस या इनकम की वजह से. बराबर है. तो सैलरी एंड कैश ही 2 अकाउंट यूज करने हैं. चाहे आप रमेश को सैलरी दो, राम को सैलरी दो, सुरेश को सैलरी दो, अकाउंट वुड बी सैलरी एंड कैश. ओके, इज दिस क्लियर? सो सैलरी एंड कैश, पार्टी का नाम इग्नोर करना है. देन 17th वन, साक्षी received commission from Rajiv ₹100. Sakshi, tell me the 2 accounts. Commission and cash. Why not Rajiv?
राजीव लिखोगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, कैश और राजीव लिखोगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, डेटर बन जाएगा वो राजीव, क्या ऐसा लगेगा कि आपने उसको गुड्स बेचा है, बराबर, इसके लिए पैसा दे रहा है, इज ही गिविंग यू मनी फॉर गुड्स, नो, commission. So what is the reason of receiving the money? Your income, right? So whenever you receive any income or whenever you pay any expense, पार्टी का नाम ignore, लिखने की जरूरत नहीं. Okay, so the two accounts are cash and commission. अच्छा, what should be debited, what should be credited? Sakshi, cash would be debited and commission will be credited. Cash asset बढ़ा, कमीशन इनकम बढ़ा. कैश एसेट बढ़ा तो डेबिट, कमीशन इनकम बढ़ी तो क्रेडिट. तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, आई थिंक योर अमाउंट इज 100 रुपीज. नरेशन लिख देना, बीइंग कमीशन रिसीव, बीइंग कमीशन रिसीव्ड. बराबर है? Is this clear? Fine. Next one. Sorry. Appointed a manager with a salary of 20,000 rupees. પણ હજી સુધી તો ખાલી અપોઇન્ટ કર્યું છે, કામ પણ નથી કર્યું ભાઈએ. એડવાન્સ આપ્યું છે? Have you paid any advance? What do you think, घरवाले? Appointed a manager with a salary of 20,000. फिक्स किया है, फिक्स किया है सैलरी 20. यस, तो कुछ एंट्री होगा? नहीं होगा. ओके, नो एंट्री. दिस इज कॉल्ड एज नो एंट्री. नो एंट्री मतलब जरूरी नहीं है कि बिजनेस में जो भी हो रहा है सबके एंट्रीज पास करने हैं. एंट्रीज किसके पास होते हैं? ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ. बराबर है? आप साइट विजिट करने जाते हो, ऑफिस देखने जाते हो, ऑर्डर वगैरह प्लेस करते हो, तो ये सब में कोई एंट्री होती है? ट्रांजैक्शन हो रहा है, अपॉइंट कर रहे हो स्टाफ को, मैनेजर को. ओके, यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे. बराबर है? अब आप ऑफिस की जगह देखने गए, आप 2-4 क्लाइंट से मीटिंग किया आपने, डज इट इन्वॉल्व एनी ट्रांजैक्शन? नो. आप एक्चुअली परचेज करोगे, सेल करोगे, बाय करोगे, सेल करोगे, इनकम होगी, एक्सपेंस होगी, या कोई एसेट आया, कोई लायबिलिटी जनरेट हुई, तो ही ट्रांजैक्शन होगा. तो हमेशा याद रखना, एक्सचेंज, ट्रांजैक्शंस मींस एक्सचेंज, तो ही उसकी उसी की एंट्री होती है. एंट्री किसकी होती है? ट्रांजैक्शन की. तो ये क्या चीज है अपॉइंटेड अ मैनेजर? इसको कहा जाता है इवेंट. इसको कहा जाता है इवेंट. ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स, बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शंस. बात समझ आई? ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट, मतलब कुछ हुआ इवेंट तभी कुछ ट्रांजैक्शन हुआ ना, कुछ घटना. घटना का मतलब होता है इवेंट. तो ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट, बट ऑल इवेंट्स आर इवेंट. घटनाएं तो होती रहती हैं, घूमते फिरते हो, मीटिंग करते हो, साइट विजिट करते हो, आप स्टाफ अपॉइंट करते हो आप, बट इसमें कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहा. तो यहाँ पे रीजन लिखना है, यहाँ पे नो एंट्री भी लिखना है आपको. ओके, प्रैक्टिकली हम लोग लिखते नहीं है, ये थियोरी में 11th-12th स्टैंडर्ड में आपको लिखना पड़ेगा नो एंट्री. ऐसा लिखने का नो एंट्री, और ऐसा नोट में लिखने का. नोट बड़ा ही सिंपल है. अपॉइंटिंग अ मैनेजर इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, हेंस नो एंट्री. Appointing a manager is not a transaction, hence no entry. Appointing a manager is not a transaction, hence no entry. तो ऐसा रोबोट नहीं बन जाने का, जो दिखे उसका एंट्री पास करना है. ओके, ध्यान से पढ़ो. इज देयर एनी एक्सचेंज? इज देयर एनी एक्सचेंज? ओके, आगे भी और एग्जांपल आएंगे, आप धीरे धीरे रिकॉग्नाइज कर पाओगे, खुद के ऊपर खुद से कर पाओगे आराम से. ओके, so appointed a manager with a salary of 20,000, no entry. नोट लिखना है नो एंट्री का. appointing a manager is not a transaction, hence no entry. Next one, issued a check for the following. देखो पहला लाइन पढ़ के क्लिक होना चाहिए. issued a check म्हणजे काय? पेमेंट कैसे हो रहा है? बैंक से हो रहा है.
इश्यूड अ चेक मतलब आपका पेमेंट जो है वो बैंक के थ्रू हो रहा है, चेक मतलब बैंक के थ्रू हो रहा है, बराबर है? इफ यू गॉट दैट। अब क्या क्या पे कर रहे हो आप बैंक से? सबसे पहला रेंट। तो रेंट पे करने की एंट्री क्या होती है? रेंट टू बैंक, बराबर है? रेंट एक्सपेंस बढ़ा, बैंक एसेट घटा, तो रेंट टू बैंक। अच्छा, हाउस रेंट का मतलब क्या? घरનું ભાડું। तो घर का भाड़ा बिजनेस का एक्सपेंस है, पर्सनल है, तो यहाँ पे क्यों दिख रहा है पर्सनल? हाँ, पर्सनल यूज के लिए वो पैसा लेके गया, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। तो आपको बोलेगा नहीं कि पर्सनल हाउस रेंट। हाउस मतलब पर्सनली होता है। हाउस में कौन रहता है? बिजनेस रहता है कि घर रहता है? ओनर रहता है, ओनर रहता है। हाउस में हु स्टेज? ओनर। तो हाउस रेंट दिया, हाउस रेंट। हाउस रेंट मतलब ड्रॉइंग्स, पर्सनल, ठीक है? कोई बोलने आएगा नहीं। एक्चुअली घर का भाड़ा बिजनेस में दिखता है क्या? कभी दिखता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्यों दिया है? यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि वो भाई ने पैसा निकाला है। कहां से निकाला है? बैंक से, बिजनेस के बैंक में से निकाला है। गॉट इट? सो पहला आएगा रेंट टू बैंक, ये लिखना मत, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। रेंट टू बैंक। फिर आएगा दूसरा वाले का ड्रॉइंग्स टू बैंक। पहला रेंट टू बैंक कितना है आपका? आई थिंक इट इज 300। और फिर दूसरा ड्रॉइंग्स टू बैंक कितना है आपका? 400। फिर तीसरा इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस किसका एक्सपेंस है? बिजनेस का है कि पर्सनल है? LIC नहीं है, इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। हमने 2 लेक्चर पहले देखा था, वो गुड्स का क्लेम वेम मिला था आपको। बिजनेस का इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। 2 तरह के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ और लाइफ पर्सनल होता है। और जनरल मतलब गुड्स एसेट वगैरह आप इंश्योर करवाते हो ना, उसको जनरल इंश्योरेंस, ठीक है? तो ये इंश्योरेंस मतलब आपका प्रीमियम, ये इंश्योरेंस मतलब आपका जनरल इंश्योरेंस, एसेट वगैरह का प्रीमियम है, ठीक है? तो ये इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है, जस्ट लाइक रेंट, दिस इंश्योरेंस इज ऑल्सो योर एक्सपेंस। ये आपने कितना पे किया है? 500। अच्छा, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस किसका रहता है? ड्रॉइंग्स रहता है, पर्सनल रहता है। यहाँ पे क्यों दिखा? यहाँ पे क्यों दिखा? हाँ, ओनर ने बिजनेस के बैंक से पैसा निकाल के वो पे किया, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। गॉट इट? वरना आप पाव भाजी खाने जाओगे, आप फन एंड फेयर में जाओगे, क्या वो बिजनेस में दिखेगा? नहीं। कब दिखेगा? यहाँ पे दिखने का मतलब क्या है? वो पैसा उसने बिजनेस में से निकाला है। समझ में आ रही है घर वाले? All of you getting that? So पर्सनल ट्रांजैक्शंस, कभी कभी पर्सनल वर्ड दे देगा, कभी कभी नहीं देगा। नहीं देगा तो आपको दिमाग चलाने का। हाउस रेंट, इज इट बिजनेस का? पर्सनल है। और क्या? लाइफ इंश्योरेंस, इज इट बिजनेस का? नहीं, पर्सनल है। और आगे पढ़ो, और क्या दिया? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसका एक्सपेंस है? बिजनेस का। तो इंटरेस्ट के लिए आई कैन यूज इंटरेस्ट। लाइफ इंश्योरेंस के लिए आई हैव टू यूज ड्रॉइंग। इंटरेस्ट के लिए आई कैन यूज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज 1000 एंड ड्रॉइंग्स आर 500। इंटरेस्ट इज 1000। इंटरेस्ट का होगा इंटरेस्ट टू बैंक। और क्या हो रहा है? सन स्कूल फीस। बच्चा बिजनेस का होता है, ओनर का होता है। तो ओनर का सन स्कूल फीस यहाँ पे कैसे आ गया? बैंक से निकाल के उसने पे किया हुआ है, बराबर है ना? तो ये भी क्या होगा? ड्रॉइंग्स। तो ये ऐसे आपको इनडायरेक्टली हिंट देंगे सम में। हाँ, ड्रॉइंग्स है ये। ड्रॉइंग्स 200 रुपया। ओके, सन स्कूल फीस, डॉटर स्कूल फीस, डॉटर्स कॉलेज फीस, ओके, डॉटर्स मैरिज एक्सपेंसेस, सन्स मैरिज एक्सपेंसेस, पर्सनल हॉलीडे, नवरात्रि पासेस, दिवाली हॉलीडेज, ये सब चीजें कौन करता है? बिजनेसमैन, ओनर। तो ये यहाँ पे नहीं दिखनी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए। दिखने का मतलब क्या है? ये पैसे उसने बिजनेस में से निकाले। बात समझ आई? सो ये सब ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। कैन आई मर्ज दीज? यस, डेफिनेटली आई कैन, आई शुड। ओके, सेम डेट पे हो रहे हैं, सेम डेट पे हो रहे हैं। सेम डेट पे हुआ तो ही मर्ज कर दो। कॉमन डेबिट कॉमन क्रेडिट कभी होगा, कभी नहीं होगा। सेम डेट पे होगा वो कॉमन, एक कंडीशन काफी है आपके लिए मर्ज करने के लिए।
तो क्या होगी कंबाइंड एंट्री इसकी आपकी? रेंट अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अभी ड्राइंग 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 3 बार मत लिखना, कोई स्टूडेंट ऐसे 3 बार लिख देते ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग। अरे भाई ड्राइंग ने ऐड करवी છે એટલા માટે તો કમ્બાઈન કરીએ। और टू व्हाट? बैंक 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 or only once? Only once. That is what is a combined entry, right? Don't write 7 times bank. There are 7 transactions. Okay. So what will be your rent में कितना आएगा? Rent में 300. ड्रॉइंग्स में कितना? ये ड्रॉइंग्स का 400, 500 और 200, 1100. इंश्योरेंस 500. Then interest 1000. And what amount you'll write in bank total? 2900. 2009. This is your combined entry. Okay. लिख दो सब लोग। रेंट डेबिट, ड्रॉइंग सब ऐड करो, इंश्योरेंस डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक बीइंग इंश्योरेंस, रेंट, इंटरेस्ट एंड पर्सनल एक्सपेंस पेड बाय चेक। Insurance, rent, interest and personal expenses paid by check. Why are the videos of Charvi, Meloni, Soham, Dhruvi? Keep it on. Off videos will be out. Sir, Mm-hmm. sir, in 19th question there are 2 accounts of rent. It's rent rupees 300 and house rent rupees 400. हाँ, रेंट भी है और हाउस रेंट भी है। तो ये रेंट, पहला वाला रेंट किसका है? ये बिजनेस का, ऑफिस का है। ये दूसरा वाला रेंट किसका है? हाउस रेंट। ओनर। ओनर का है। ओनर का है मतलब वो घर का भाड़ा हुआ ना। घर का भाड़ा यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे दिखने का मतलब क्या है कि उसने वो पैसा बिजनेस में से निकाला है। दैट इज ड्रॉइंग्स। समझा? जैसे इंश्योरेंस भी था, लाइफ इंश्योरेंस भी था। इंश्योरेंस मतलब वो किसका है? बिजनेस का है। जनरल इंश्योरेंस, गुड्स का, एसेट्स का, उसका प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्यों दिख रहा है? क्योंकि भाई ओनर ने पैसा निकाला है। ड्रॉइंग्स। ओके। लिखा कंबाइंड एंट्री बीइंग इंश्योरेंस, रेंट, इंटरेस्ट एंड पर्सनल एक्सपेंस पेड बाय चेक। दैट्स योर नरेशन। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट वन, एक्सचेंज 100 રૂપિયા નોટ ફોર 10 રૂપિયા નોટ। કેમ ટ્રાન્ઝેક્શન છે? પૈસા આપ્યા, પૈસા લીધા, છૂટા કરાવ્યા, कुछ आएगा ट्रांजैक्शन? आना चाहिए ना कैश टू कैश। कैश आया कैश गया है ना। આવું જોઈએ કે ના આવું જોઈએ? શું લાગે છે? નહીં આવે। કેમ? વેલ્યू तो सेम છે પણ અકાઉન્ટ પણ સેમ છે। મેઇન રીઝન ઇઝ અકાઉન્ટ। व्हाट आर यू गिविंग? कैश। व्हाट आर यू गेटिंग? कैश। हाँ, कैश देके मोटर कार आता या फर्नीचर आता या फर्नीचर देके कैश आता तो इट वुड हैव बीन अ ट्रांजैक्शन। सेम अकाउंट हो रहा है ना, डेबिट क्रेडिट, सो इट विल गेट नलिफाइड। तो ये भी नो एंट्री है। ओके, तो नो एंट्री। 20th वन इज ऑल्सो नो एंट्री। रीजन में लिखना है सेम रीजन, सबका कॉमन। क्वेश्चन छापो एंड इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। तो एक्सचेंज ऑफ कैश फॉर कैश इज नॉट अ transaction, hence no entry. Exchange of cash for cash is not a transaction, hence no entry. Okay, exchange of cash for cash is not a transaction, hence no entry. Clear? But what if आपने डॉलर खरीदा रुपी देके? If you buy dollar by giving rupees, वो तो बैंक लेगा। Oh, Bank maybe data. it's cash or cash. nah, then your entry will be recorded. Okay, because dollar will be like an asset. Dollar will be like an asset, क्योंकि डॉलर अपना रुपी नहीं है ना, इंडिया का। ये सब किस में हो रहा है?
रुपीज में हो रहा है, ऊपर आप लिखते हो ना डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज, ये सब ट्रांजैक्शन रुपीज में हो रहा है। जब तक रुपीज रुपीज है तब तक टेंशन नहीं है, बट डॉलर खरीद रहे हो, पाउंड खरीद रहे हो, यूरो खरीद रहे हो, so they are like asset, क्योंकि उसका भाव सेम रहता है कि फ्लक्चुएट होता है। हाँ, तो आप डॉलर आज 70 रुपीज में खरीदोगे और 15-20 दिन बाद उसको 72 में बेच दोगे। तो जैसे इन्वेस्टमेंट खरीदते हो आप, वैसे इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज इज ऑल्सो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिटकॉइन आजकल बहुत चल रहा है। डॉलर 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 आर सेपरेट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर हो, पाउंड हो, यूरो हो, सेम अकाउंट। बिटकॉइन अकाउंट, बिटकॉइन खरीदा है और कैश दिया है। ओके, कितना है अभी? $50,000 नहीं, अभी तो घट गया, $35,000, $30,000 चल रहा है, $31,000। तो एक बिटकॉइन खरीदा और फिर एक बिटकॉइन बेचा, $31,000 में खरीदा, $32,000 में बेचा। So that's like an asset. Okay. रुपीज अगेंस्ट रुपीज इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। डॉलर, पाउंड, यूरो खरीद रहे हो तो फिर एंट्री आएगी। Okay. Then next one, withdrawn goods worth 500 and cash of 1,000 for personal use. So Ashna, would you like to answer this? Withdrawn goods of 500, पहले खाली withdrawn goods for 500, तो क्या होंगे दो अकाउंट्स? ड्रॉइंग्स एंड गुड्स। गुड्स के जगह पे कौन सा यूज कर सकते हैं? परचेज। और कैश ऑल्सो यू हैव विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सो ड्रॉइंग्स एंड कैश दो हो रहे हैं यहाँ पे एंट्रीज। समझ में आया सबको? व्हाट आर द टू एंट्रीज? एक है ड्रॉइंग्स एंड गुड्स, गुड्स या फिर परचेज, परचेज, और दूसरा है ड्रॉइंग्स एंड कैश। कैश। तो दोनों को मर्ज कर सकते हो। यस, क्या होगा? ड्रॉइंग्स क्या होगा आपका? डेबिट हो जाएगा। वाई डेबिट? डेबिट द रिसीवर, या फिर ड्रॉइंग्स बढ़ा तो डेबिट कितना होगा? ड्रॉइंग्स टोटल 1,500 टू गुड्स। गुड्स की जगह क्या लिखने का? गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज या फिर परचेज। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट या फिर परचेज। याद आ रहा है ये किया था? गुड्स विड्रॉन, गुड्स लॉस्ट, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। परचेज क्यों लिखा है? विल यू बी सेलिंग दिस गुड्स? परचेज में कौन सा परचेज होता है? द गुड्स विच यू सेल। जो बेचते नहीं हो वो परचेज नहीं है। और कहीं जा रहा है तो परचेज में से निकालो, परचेज में से रिमूव कर दो, परचेज कम कर दो। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, या परचेज अकाउंट टू व्हाट? कैश। कैश जा रहा है बिजनेस में कि आ रहा है? जा रहा है। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या फिर एसेट घटा तो क्रेडिट। तो ड्रॉइंग्स में 1,500 टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज में 1,000 टू कैश में 500। अच्छा उल्टू है, गुड्स में कितना है? अच्छा 500 और कैश में 1,000। नरेशन लिख दो, बीइंग goods and cash withdrawn for personal use. Being goods and cash withdrawn for personal use. Being goods and cash withdrawn for personal use. Being goods and cash withdrawn for personal use. ठीक है? Being goods and cash withdrawn for personal use. Done? Clear till यहाँ पे? घर वाले all clear? बढ़े आगे? Next one. Receive free samples of, deposited 2,000 in bank. विहान, डिपॉजिटेड 2,000 इन बैंक क्या होना चाहिए? ध्यान में, कैश टू बैंक। अच्छा, कैश और बैंक दो अकाउंट तो राइट है। अब सोचो क्या डेबिट क्या क्रेडिट है? व्हाट वुड यू डेबिट एंड व्हाट वुड यू क्रेडिट? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। हाँ किम,
बैंक बढ़ेगा, एसेट इंक्रीजेस, और कैश घटेगा, एसेट डिक्रीज, बराबर है। या फिर ट्रेडिशनल बैंक पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर एंड कैश इज गोइंग आउट, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बराबर है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट इंक्रीजेस, बैंक बैलेंस बढ़ा तो डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश घटा तो क्रेडिट। डिपॉजिटेड मतलब बैंक में पैसा डाला, बैंक में पैसा डाला, कितना डाला? 2000 रुपया, बीइंग कैश deposited with bank, being cash deposited with bank, correct है, absolutely right. 23rd, what's the name? I forgot. Vaibhavi said. Vaibhavi, tell me, withdrawn rupees 1000 from bank for personal use and 500 for office use. पहले तो आराम से देखो, withdrawn 1000 from bank for personal use, क्या दो अकाउंट्स हो? बैंक अकाउंट एंड वेरी गुड, एकदम परफेक्ट, ड्रॉइंग्स और बैंक सबको समझा। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल, ये मैंने पेपर में डाला था, टेस्ट पेपर, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, सो ड्रॉइंग्स एंड बैंक वेर द टू अकाउंट्स, ओके, ड्रॉइंग्स एंड बैंक। यहाँ पे भी काफी लोगों ने गड़बड़ कर दिया, ड्रॉइंग्स एंड कैश लिख दिया, कैश एंड कैपिटल लिख दिया। ओनर ये बनाया था ड्रॉइंग, याद आ रहा है? ये ओनर, ये बिजनेस और ये बैंक, बराबर है। ओनर अगर बिजनेस में पैसा डालता है, व्हाट आर द टू अकाउंट्स? कैश एंड कैपिटल। ओनर अगर बिजनेस मतलब ऑफिस से पैसा लेके जाता है तो ड्रॉइंग्स एंड कैश, ड्रॉइंग्स एंड कैश। फिर बिजनेस, ये बिजनेस अगर बैंक में पैसा डालता है तो बैंक एंड कैश, और बिजनेस अगर बैंक से ऑफिस यूज के लिए निकालता है तो कैश एंड बैंक। अभी ओनर अगर डायरेक्टली बैंक में पैसा डालता है, ओनर पुट्स द मनी डायरेक्टली इनटू बैंक, क्या नो? ओनर डाल रहा है ना बैंक में, ओनर बिजनेस के बैंक में डाल रहा है पैसे। नो, अरे भाई ओनर, टू बैंक कैपिटल, हाँ, बैंक एंड कैपिटल, ये बिजनेस का बैंक है, ओनर बिजनेस के बैंक में डाल रहा है पैसे, सो क्या होगा? कैपिटल एंड बैंक। और ओनर बिजनेस के बैंक में से निकाल के घर पे लेके गया, तो ड्रॉइंग्स एंड बैंक, ड्रॉइंग्स एंड बैंक। तो इधर क्या हो रहा है? ये हो रहा है, ये 6th वाला। इधर क्या हो रहा है? ओनर मतलब प्रोप्राइटर, विड्रॉन कितना? 1000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल। तो एक तो ड्रॉइंग्स एंड बैंक हुआ। अब आगे पढ़ो, ही ऑल्सो विड्रू 500 फॉर ऑफिस यूज। तो ये 500 फॉर ऑफिस यूज मतलब बैंक से ऑफिस में आया पैसा, तो बैंक एंड कैश। बिजनेस में आवे ना, घरे न जता, ओके। तो बोलेगा ओनर, बट पर्सनल यूज है कि ऑफिस यूज, वो मैटर करता है। पर्सनल यूज मतलब घरे ले गया, तो ड्रॉइंग्स एंड बैंक। ऑफिस यूज मतलब ऑफिस में कैश लाए, सो कैश एंड बैंक। अब ड्रॉइंग्स और बैंक में क्या डेबिट क्या क्रेडिट? ओनर अगर पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है तो ड्रॉइंग्स डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। ड्रॉइंग डेबिट द रिसीवर, बैंक क्रेडिट द गिवर, पर्सनल। या फिर ड्रॉइंग्स बढ़ा तो डेबिट और बैंक घटा तो क्रेडिट, बराबर है। ड्रॉइंग्स बढ़ा तो डेबिट, बैंक घटा तो क्रेडिट, ये समझा। और ऑफिस यूज मतलब ऑफिस में कैश आया, कैश डेबिट और कैश डेबिट व्हाट कम्स इन एंड बैंक क्रेडिट द गिवर। या फिर मॉडर्न कैश इंक्रीजेस तो डेबिट एंड बैंक डिक्रीजेस तो क्रेडिट। समझ में आया? सो पहले वाले में ड्रॉइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट, दूसरे वाले में कैश डेबिट। तो आपके दो एंट्री क्या बनते हैं? एक ड्रॉइंग्स टू बैंक और दूसरा कैश टू बैंक। ये बात समझ आई कि नहीं? पहले ड्रॉइंग्स टू बैंक और कैश टू बैंक,
ध्यान से देखो इस एंट्री को सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, बहुत बार आने वाली है आगे भी। क्या हो रहा है? ओनर इज टेकिंग अवे मनी फ्रॉम बैंक, सो ड्रॉइंग्स बढ़ा और बैंक घटा, सो ड्रॉइंग्स टू बैंक, एंड ओनर इज टेकिंग अवे मनी फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, सो कैश बढ़ा और बैंक घटा, ड्रॉइंग्स टू बैंक, कैश टू बैंक। इज दिस क्लियर? कैन यू मर्ज इट? यस, करना ही है। व्हाट विल बी योर कंबाइंड एंट्री नाउ? Drawing account debit to cash account debit to bank account. 2 कि कैश डेबिट होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट, कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बैंक। गॉट इट? ड्रॉइंग्स डेबिट, कैश डेबिट टू बैंक। सॉर्टेड? आपका ड्रॉइंग्स डेबिट कितना आएगा? 1000, कैश डेबिट 500, टू बैंक 1500, 1500। सो हमेशा याद रखना, पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है तो ड्रॉइंग्स, ऑफिस यूज के लिए लेके आ रहा है तो कैश। ओके, ऑफिस यूज जैसा कोई अकाउंट होता है ऑफिस यूज, ऑफिस यूज मतलब बिजनेस में कैश लाया। ओके, बिजनेस में कैश बढ़ा, बीइंग कैश withdrawn from bank for personal and office use, personal and office use। 24th, received free samples, received free samples। when do you receive free samples? Advertisement. हम लोग देते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, सामने वाला अपने को दे रहा है। यहाँ पे आर वी गिविंग और आर वी रिसीविंग? रिसीविंग। हम लोग दे रहे हैं तो दैट इज फॉर एडवर्टाइजमेंट। हम लोग को कभी कभी मिलता है, मालूम है, अपना सप्लायर देता है कि माल देखो चलेगा तो आगे खरीदना, तो फ्री में देके जाता है। कभी कभी आपका बिस्किट्स में होता है, फूड प्रोडक्ट्स, एपीएमसी में काफी होता है, दाना बंदर में, और आपका इसमें भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। समटाइम्स डीलर को मोबाइल देके जाते हैं वापरने के लिए, टेस्टिंग के लिए। तो ये फ्री सैंपल दिया है कि लिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिया है। और फ्री सैंपल में आपको क्या मिलता है? गुड्स मिलता है। व्हाट डू यू गेट? गुड्स। अब चीज ऐसी है कि जब भी कुछ गुड्स फ्री में आए तो हम कोई एंट्री पास क्यों नहीं करते? क्या हम वो गुड्स बेचने वाले हैं? वन साइड, मतलब कुछ पैसा वैसा दिया नहीं है, फ्री में वापर लेंगे और खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर कोई दुकानदार ऐसा शाना है कि वो फ्री सैंपल भी बेच रहा है, फ्री सैंपल भी वो तब भी फ्री सैंपल रिसीव करते वक्त कोई एंट्री, जब बेचेगा ना, ब्लैक नहीं व्हाइट, पूरा सेल्स गिना जाएगा, पूरा सेल्स गिना जाएगा, और वो सेल्स में पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा आपका। वो सेल्स में एंटायर अमाउंट वुड बी प्रॉफिट। परचेज कॉस्ट 0 हो गया उसका। आपको एक मोबाइल फोन मिला, वैसे आप 10,000 में खरीदते हो, 15 में बेचते हो। ये मोबाइल फोन फ्री में आ गया और आपने कितने में बेचा? 15 में। तो फुल 15 का 15 आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो जब बेचोगे तब उसकी एंट्री कर दी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल आर वी सेलिंग द फ्री सैंपल्स? मोस्टली फ्री सैंपल क्या आप बेचते हो? नहीं, अपने पास ही रख लेते हो, यूज करके देखते हो कि भाई काम आएगा, अच्छा चल रहा है तो हम और ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो हमेशा याद रखना, फ्री सैंपल या कुछ भी फ्री में आएगा तो कोई एंट्री करने की जरूरत कोई नहीं होगा, नो ट्रांजैक्शन। ओके, तो फ्री सैंपल्स रिसीव, फ्री में कुछ भी आए, आपको फ्री में कोई एसेट देके जाए कोई साइड में, फ्री ट्रांजैक्शन रिसीव, फ्री में आने का कोई एंट्री नहीं। बेचोगे तब एंट्री आएगा। इफ यू सेल इट देन योर एंट्री विल एज योर सेल्स, दैट टू इफ यू सेल इट फॉर व्हाइट। ओके, ब्लैक में बेच दिया, कैश में तो कुछ दिखने वाला नहीं है। ठीक है, तो इनकम जो एग्जैक्टली, पर तो रिकॉर्ड डेथ थी। इसके पीछे एक और कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म एक कंसेप्ट है, क्या बोलते हैं अभी मैं ब्रीफ में बता रहा हूं, आगे डिटेल में जाऊंगा। तो ये
कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या बोलता है कि अकाउंट्स जब भी आप चीजें रिकॉर्ड करते हो ना बुक कीपिंग में, तो फॉलो अ कंजर्वेटिव पाथ। कंजर्वेटिव मतलब डर डर के करने का। तो लॉसेस अगर आपको लग रहा है एंटीसिपेट कुछ फ्यूचर में लॉस होगा, तो लॉस अभी का अभी रिकॉर्ड करके दिखा देते हो। एक्सपेंस अभी का अभी रिकॉर्ड करके दिखा देते हो, फ्यूचर का भी। अगर आपको लगे कि कुछ लॉस होगा फ्यूचर में, कुछ एक्सपेंस होगा, जैसे कि कुछ डेटर पैसा नहीं देगा, शायद बैड डेट होने वाला है, तो अभी से वो लॉस रिकॉर्ड करो। कैसे करना है वो सब बताऊंगा। बट अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, तो वो कभी एडवांस में नहीं दिखाने का। व्हाई? बिकॉज दिस इज जनरल ह्यूमन टेंडेंसी। एग्जाम में पेपर खराब गया है तो आज जाके मम्मी और पापा को बोल दो पेपर खराब गया है, तो कम मार पड़ेगी। आज बोलोगे बहुत सारू गयू, और फिर रिजल्ट में बहुत फेल हो गया, तो कितना जूता पड़ेगा? डबल जूता पड़ेगा। हमने तो कहते तो वो सारू गयू। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जोर का झटका धीरे से दे देने का पहले। तो कंजर्वेटिज्म में क्या होता है, अकाउंट में भी यही होता है, क्योंकि ये कंपनी सब रिजल्ट्स पब्लिश करती हैं, रिलायंस, टाटा, विप्रो, ये सब। क्या इनके अकाउंट्स कौन देखता है? हजारों लोग देखते हैं इनके अकाउंट्स। अब जैसे रिलायंस जैसी कंपनी है, उसको दिख रहा है कि फ्यूचर में कुछ लॉस होगा, तो वो अभी से दिखा देगी, अपने सब शेयर होल्डर इन्वेस्टर को बता दे, देखो भैया ये डेटर से पैसा आने वाला नहीं है, ये लॉस मैंने दिखा दिया है, बैड डेट मैंने पहले ही दिखा दिया है। फिर फ्यूचर में वो डेटर पैसा नहीं देगा तो क्या पब्लिक को झटका लगेगा? वो तो दिखा दिया था, बोलेगा हाँ अच्छा बंदा है, उसने पहले से लॉस दिखा दिया। लेकिन अभी उल्टा किया रिलायंस वाले ने बोला ही नहीं, ये उसको मालूम है ये डेटर विजय मल्ल्या है, ये भाग गया है लंदन, ये पैसा देने वाला, लेकिन उसने दिखाया नहीं अपना अकाउंट, वो लॉस दिखाया नहीं, मस्त में प्रॉफिट दिखा रहा है, वो लॉस दिखाया नहीं। और फिर बैड डेट हुआ, बहुत बड़ा बैड डेट हो गया, पैसा आया ही नहीं, तो पब्लिक क्या करेगी? आ सालो ચોર દેખાડતો નથી, લોસ પહેલાથી મેં એના શેર ખરીદીને રાખ્યા છે, મને લાગ્યું કંપની પ્રોફિટ કરશે અને હવે શું કરે છે? लॉस। समझ में आ रहा है ये? तो दिस इज जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, साइकोलॉजी है ह्यूमन बीइंग का। भले ही लॉस उतना ही है, लेकिन एडवांस में दिखाओगे तो कम जूता पड़े। सेंटीमेंट ऐसा रहता है, पहले आप अच्छा बताओगे और बाद में भोपाड़ा कर दोगे तो ज्यादा गुस्सा आएगा। यस और नो? पहले से स्लोली कमिट लेस एंड डिलीवर मोर, दैट इज फाइन, बट commit more and deliver less, so it will go against you always. Is this clear? So the same principle is applicable to bookkeeping and accountancy. Whenever you record the transaction, ये concept है, one of the concept, entity concept देखा आपने, businessman separate entity, going concern, business लंबे टाइम तक चलेगा। फिर हमने एक और देखा कौन सा, कॉस्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, सब एसेट पे कॉस्ट प्राइस ऐड करने का। और कौन सा देखा, मैचिंग कंसेप्ट, मैच योर इनकम विथ योर एक्सपेंस। ऐसे एक और कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या बोलते हैं? शो योर लॉसेस इन एडवांस, बट नेवर शो योर प्रॉफिट्स, फ्यूचर प्रॉफिट्स इन एडवांस कभी नहीं दिखाने का। तो ये जो फ्री सैंपल है ना, ये मिला है, बराबर है, बट क्या हम इसे बेचेंगे? श्योरिटी नहीं है। अगर बेचा तो इनकम होगा, बट बेचा ही नहीं तो कोई इनकम। तो अभी कुछ इनकम दिखाने का नहीं, जब बेचोगे ना अपने आप इनकम होगा, तब रिकॉर्ड कर दो। एडवांस में इनकम नहीं दिखा, वापर लिया तो कुछ इनकम नहीं है, कुछ एक्सपेंस नहीं है, जीरो है, राइट? समझ में आई बात? सो दैट्स व्हाई, तो बिजनेस में कुछ पैसा वैसा आया नहीं है ना, इनकम, तो अभी रिकॉर्ड करने का नहीं। तो फ्री सैंपल्स रिसीव, रीजन सेम लिखने का, फ्री सैंपल्स received is not a transaction, hence no entry. Free samples received is not a transaction, hence no entry. No exchange, you're not giving anything, just getting that to free of cost. The free samples received is not a transaction, hence no entry. સર તો પછી આપણે ડિસ્કાઉન્ટ પછી આપણને મળે એને કેમ ઇન્કમ નહીં મળે જ છે ને, actually we are paying less ના, આપણે તો આમાં તો પે જ નથી તો આપણને, તો
પછી એનો ફાયદો થાય. ત્યાં તો આપણને માલ મળ્યું ને, ત્યાં આપણે પરચેસ કર્યું, બરાબર. તે સપોઝ 10 મોબાઈલ ફોન લીધા અને 9 ના પૈસા આપ્યા, તો એક તને ફ્રીમાં આવ્યું છે મોબાઈલ ફોન, એ મોબાઈલ ફોન તું વેચીશ, એટલા માટે પરચેસ તારો એક્સપેન્સ છે ને, એના સામે એક્સચેન્જમાં ડિસ્કાઉન્ટ આવ્યું. આ વેચવાની કઈ ગેરંટી? આ તો વેચવા વાળો હોઈશ તો તારું જ્યારે વેચીશ ત્યારે કેશ ટુ સેલ્સ, ત્યારે ઇન્કમ રેકોર્ડ થઈ જશે, બરાબર. અહીંયા વેચવાની કઈ ગેરંટી નથી, ધેટ્સ વાય યુ ડોન્ટ રેકોર્ડ. ક્લિયર? देन बढ़े आगे, उसका ये ऑपोजिट आ रहा है 25th में, डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स एज 300 एज फ्री सैंपल. दिस इज अवर एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, बट आर वी गिविंग कैश? सैंपल म्हणजे गुड्स. व्हाट आर द टू अकाउंट? एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एंड गुड्स या परचेज, गुड्स या परचेज. सो एडवर्टाइजमेंट क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट. डेबिट ऑल एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? गुड्स की कैश? गुड्स. तो गुड्स के लिए क्या लिखने का? गुड्स के लिए पूरा नाम, जैसे यहाँ पे लिखा गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, वैसे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल या फिर परचेज, या फिर परचेज, या फिर परचेज अकाउंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल या फिर परचेज. क्यों किया डेबिट एडवर्टाइजमेंट? हमने क्या दिया है? गुड्स. अगर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करते, मतलब एडवर्टाइजमेंट पे कैश देते, तो क्या होता? दो अकाउंट, तो फिर एडवर्टाइजमेंट एंड कैश, बराबर. बट आर वी गिविंग कैश? वी आर गिविंग गुड्स. तो एडवर्टाइजमेंट एंड गुड्स. खर्चा बढ़ा तो डेबिट, गुड्स घटा तो क्रेडिट, या फिर खर्चा बढ़ा, एडवर्टाइजमेंट बढ़ा तो डेबिट, और परचेज घटा तो क्रेडिट. परचेज में से कम कर दो. एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स, हाउ मच? 300. ये मिला नहीं है, ये दिया है. दिया है तो डेफिनेटली खर्चा है, खर्चा है तो बिंदास रिकॉर्ड करो. बीइंग गुड्स distributed as free samples. Being goods distributed as free samples. Is this clear? Neon sign board. Neon sign. Neon sign is that lighting वाला advertisement. Lighting वाला रहता ना, colorful lighting and all. That is neon sign. बढ़े आगे 26th. Okay. 26th one. Issued a check for neon sign board. Why do you buy a neon sign board? Advertise. Neon sign is that lighting, colorful lighting and all. That is advertisement. So neon sign board है, hoardings है, आपका न्यूज़पेपर ऐड है, टीवी ऐड है, रेडियो ऐड है, ये सब किस में डाल देने का? एडवर्टाइजमेंट. So what will be the two accounts? Advertisement and bank. बैंक की कैश, बैंक, ये चेक है, बराबर है. Both are fine. Advertisement expense, advertising, advertisement. Okay. So advertisement and bank क्या होगा? Credit. Advertisement account would be debited and bank account will be credited. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, बैंक एसेट घटा तो क्रेडिट. कितना आएगा ये? 1000. नरेशन में आप मेंशन कर सकते हो being simply neon sign board purchased या check paid for advertisement. check paid for advertisement तो भी चले. check paid for advertisement, neon sign board purchased. ओके. अब करते हैं आखिरी 3 एंड देन विल स्टॉप. 27, 28 एंड 29. 27, 28, 29 करके विल स्टॉप. लास्ट 3 ट्रांजैक्शंस. सी 27th वन आपने पहले भी किया हुआ है. लेट्स सी किसी का बत्ती चमक रहा है कि नहीं.
देखो क्या दिया है 27. Ajay, our debtor became insolvent. We had to receive 500 rupees from him. अजय डेट, हाँ 500 रुपया लेने का था, इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब पैसा आया कि नहीं. What is that loss called as? Bad debt. So one account is bad debt. What is the other account? Why not cash? We are not paying anyone any cash, right? So bad debt and Ajay. So क्या डेबिट क्या क्रेडिट? बैड डेट डेबिट. Why? एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, और अजय क्रेडिट. क्यों? हाँ, डेटर घटा, एसेट घटा तो क्रेडिट. क्या ये? This will be your non-cash loan. Yes, absolutely right. It is a non-cash expense. It is a non-cash expense. Expense बढ़ा तो डेबिट, लेकिन क्या कैश घट रहा है? क्या घट रहा है? डेटर घट रहा है. Some other asset is decreasing. So it is a non-cash expense. क्या ये ट्रेडिशनल में फिट होता है? नहीं होता. ये फ्लॉ है, उस दिन भी बताया था आपको. ये ट्रेडिशनल में फिट नहीं होने वाला. डेबिट और एक्सपेंस होगा, बट अजय क्रेडिट द गिवर. Is he giving us anything? He is not giving us anything. तो ये पूरी तरीके से ट्रेडिशनल में फिट नहीं होगा. ओके, बट मॉडर्न में होगा. मॉडर्न में क्या हो रहा है? एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, और डेटर घट रहा है तो क्रेडिट. समझ में आया घर वाले? और घर वाले क्लियर? सो क्या करना है? डेबिट. क्या करना है? क्रेडिट. Bad debts debit. Bad debts account debit to अजय अकाउंट क्रेडिट. बराबर है? बैड डेट टू अजय, बैड डेट टू अजय कितना आएगा? 500. 500 being bad debts from Ajay recorded. Bad debts from Ajay recorded. This is 27. Bad debts from Ajay recorded. It is a non-cash expense. It is a non-cash expense. Okay, cash is not going out. Cash is not going out. ठीक है, बढ़े आगे. नेक्स्ट वन. कोई बिजनेस है ना, बहुत शाणे होते हैं. आप लोग आगे जाके डिटेल में अकाउंटेंसी सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई बिजनेस क्या करते हैं. देखो, अजय को आपने जब गुड्स बेचा होगा तब क्या एंट्री मारी होगी? क्रेडिट पे बेचा होगा ऑब्वियसली. सेल्स. अजय टू सेल्स. क्रेडिट सेल्स की एंट्रीज अजय टू सेल्स. तो अजय टू सेल आपने मार दिया. वैसे कंपनीज भी मार देती हैं अजय टू सेल्स. तो मतलब अजय से पैसा लेना बाकी है. अब सेल्स तो आपकी इनकम हो गई, और प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करते हो? इनकम माइनस. तो कंपनी प्रॉफिट दिखा देगी कि हाँ, हमने अजय को 1 लाख रुपए का सेल किया है, ये हमारी इनकम है और ये हमारे प्रॉफिट है. तो शेयर होल्डर देखेंगे कि हाँ भाई, कंपनी ने इतना सेल्स किया है, इतना प्रॉफिट है, चलो इस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, चलो इस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं. बाद में पीछे से पता चलेगा वो अजय कोई और नहीं है, वो जो कंपनी का ओनर है ना, उसका पत्नी का भाई है. कंपनी का ओनर है ना, उसका साला है वो, मतलब खुद का ही आदमी है. और फिर हो गया बैड डेट. नेक्स्ट ईयर पैसा आया ही नहीं, પછી થઈ ગયું શું? બેડ ડેટ, લોસ. તો કાંઈ પ્રોફિટ હતું? જે પણ લાસ્ટ યર નું પ્રોફિટ હતું આ વર્ષે બધું શું થઈ ગયું? ખતમ. ત્યાર સુધી જ્યારે પબ્લિક ખરીદતી હતી શેર્સ, ત્યારે કંપની વાળા વેચીને निकली गया. अभी कंपनी का जब शेयर खरीदा रहेगा तभी भाव बढ़ेगा ना. कंपनी वाला शाना है, उसके पास भी शेयर है, वो क्या करेगा? बेच के निकल जाएगा, प्रॉफिट बना के निकल जाएगा. और बेचारा गरीब लोग, पब्लिक जनता जो शेयर खरीद के रखा था, वो उल्लू बन के रह गया, उसके गले में आ गया शेयर. ऐसे इंडिया में बहुत चलता है, बहुत सारा झोल होता है. 85% कंपनीज इन इंडिया डू नॉट मेंटेन एन अकाउंट, देयर अकाउंट विद ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब ट्रूथफुल प्रेजेंटेशन. 85% कंपनीज इन इंडिया. झोल चालू रहता है. अभी थोड़ा थोड़ा क्लीन अप चालू है. तुम लोग आ जाओगे सीए बन के, तब तक शायद क्लियर हो जाए, कोई बनेगा तो. ओके,
तो 5 6 years 7 years, बट इससे पहले तो और हालत खराब था. इफ यू माइट हैव सीन दिस हर्षद मेहता एंड ऑल, तो क्या क्या झोल चालू रहता था. कोई कंपनी का कुछ है ही नहीं, ठिकाना नहीं है. मालूम मैजदा वाला, एक अगर देखा होगा तो पता होगा, खाली कबाड़ी 2 दरवाजा था और उस कंपनी का शेयर चल रहा है मार्केट. बिजनेस है ही नहीं और ऐसे ही चल रहा है. तो सो मच ऑफ झोल यूज्ड टू हैपन. अभी तो बहुत कम हो गया, बट स्टिल अकाउंट्स में अभी भी चालू रहता है. तो ऐसे बैड डेट का बहुत झोल होता है. इसलिए आपको ये भी चेक करने का, कभी भी आप अकाउंट्स रीड करते हो ना, एनालाइज करते हो, तभी खाली ये नहीं देखना कि कंपनी का सेल्स कितना हुआ, सामने डेटर से पैसा आया कि नहीं. तो पता चला अभी सेल और पीछे बैड डेट, अभी सेल और पीछे बैड डेट. सेल तो થાય છે પણ પૈસા આવતા જ નથી, તો કઈ સેન્સ બને બિઝનેસ में? ये चेक करना पड़ता है. ओके સર તો પછી ઈ કંપની પછી ક્યારે પ્રોફિટ જ ન બની શકે, પછી બીજું પાછું બિઝનેસ ખોલે તો એને પાછું એવું પ્રોબ્લેમ થાય. એનાથી તો નામ ખરાબ થતું જાય ધીરે 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 ધીરે. હા પછી બધાને ખ્યાલ ના આવે. બધા લોકો શું હે, શોર્ટ ટર્મ. people have a short term memory. that is a sad part. આટલું બધું ના હોય. એ શું કરે, ઝોલ કરતી હોય થોડું. હવે જો સડનલી 1 લાખનું પ્રોફિટ ને 1 લાખનું લોસ એવી રીતના નહીં બતાવે. 1 લાખનું પ્રોફિટ બતાવશે પેલા સેલ કરીને, પછી 90,000 પૈસા આવી ગયા, 10,000 નું બેડ ડેટ થયું. હવે શેર પ્રાઇસ તો એવરીડે વધઘટ થતું જ હોય. થોડું પ્રોફિટ વધે તો શેર પ્રાઇસ વધી જાય, થોડું પ્રોફિટ ઘટે તો શેર પ્રાઇસ. પબ્લિક શેર હોલ્ડર એનું ધ્યાન ના આપે, આ થોડું ઘટ્યું છે ચાલો. તો તું 10-20 રૂપિયામાં પણ સપોઝ તારા પાસે 10 લાખ શેર હોય, 10-20 રૂપિયામાં પણ તું 1 કરોડ રૂપિયા કમાઈને નીકળી જાય ને. ધીસ ઇઝ હાઉ દે પ્લે. થોડું થોડું કરી, એક સાથે ઝટકું ના આપે. So no one understands it. Got it? Then I like that so many chore companies are there in India. Many chore companies. Only I told you na 10 to 15% companies are clean, good. They are truthful. They show their accounts properly. Like for example, Tata Group, TCS, Tata ka pura group, very decent, very ethical. Infosys, Wipro, these are all very decent, ethical companies. MRF, Berger Paints, Asian Paints, these are all very good companies, decent companies. કોઈ તો પેન્ટ્સ ની પણ હતી જે નીચે પડી હતી અચાનક. હમણાં આવી ને ઓલી ધોની આવતો તો એ એડ માં કઈ હતી, ઇન્ડિગો પેઇન્ટ્સ. એ આમ જ હાઇપ કરેલો હતો ઓપરેટર. ચલો 28th one. Vijay, our debtor to the extent of 3,000 becomes insolvent. Only 30% recovered. See, very simple entry. Vijay कौन था? Debtor. कितना लेना था अपने को? 3,000. 3,000 का 30% कितना होता है? 3,000 का 30% कितना होता है? 900. और 70% 2,100. 2,100. So 3,000 में से अजय ने कितना दिया? 900 दिया. 900 पैसा आ गया तो ये कैश होगा ना, और ये क्या होगा? मतलब बैड डेट. तो मुझे बताओ, बैड डेट को भूल जाओ, अजय ने खाली कैश दिया. अजय ने कैश दिया तो क्या होंगे दो अकाउंट्स आपके? कैश एंड अजय, राइट? पैसा देता है ना डेटर, अभी क्या करते हो? कैश एंड विजय. तो कैश एंड विजय बराबर है. तो कैश बढ़ा कि घटा? बढ़ा. कैश बढ़ा तो डेबिट एंड डेटर घटा. जब भी डेटर पैसा देता है तब डेटर डिक्रीजेस, तो डेटर क्रेडिट, विजय क्रेडिट. ये किसका एंट्री है? कैश टू विजय किसका है? जो पैसा उसने दे दिया वो कैश टू विजय होगा, और जो नहीं दिया वो बैड डेट टू विजय, क्योंकि वो लॉस है ना. लॉस बढ़ा तो डेबिट, और विजय फिर भी घटा. तो कैश टू विजय कितना है और बैड डेट टू विजय? कैन वी क्लब? What will be the combined entry? Cash account debited, bad debt debit to विजय. समझाए थे घरवाड़ा? कैश मिला तो कैश बढ़ा, विजय घटा. बैड डेट हुआ तो एक्सपेंस बढ़ा, विजय घटा. दोनों साथ में हो रहा है तो कंबाइन करो.
तो आपका कंबाइंड एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट, देन बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट. ओके, कितना आएगा कैश अकाउंट डेबिट? सोचो. 900. बैड डेट 2100. एंड विजय में 3000. being cash received and bad debts from Vijay recorded. या क्वेश्चन भी लिख सकते हो. विजय डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 30% ड्यूज रिकवर्ड. विजय डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 30% ड्यूज रिकवर्ड. Vijay declared insolvent and 30% dues recovered. Is this clear? Sorted. Last one. See the last one. That is Vijay, our debtor. Sorry, an amount of 200 previously written. अच्छा एक मिनट, पहले ये दोनों क्लियर हुआ आपको? बैड डेट और कैश बैड डेट. Yes, sir. कैश मतलब थोड़ा पैसा आया तो वो कैश, जो नहीं आया वो बैड डेट. कैश बैड डेट टू विजय. और लास्ट वन में क्या दिया है? an amount of 200 previously written off as bad debts now recovered. इसका मतलब क्या है? आपका कोई डेटर था आज से 3-4 साल पहले जो बैड हो चुका था, इंसॉल्वेंट हो चुका था, वो खराब हो गया, बैड हो चुका है, तो बैड डेट टू डेटर. आपने वो एंट्री ऑलरेडी करके उसका अकाउंट बंद करके रख दिया 3-4 साल पहले. बैड डेट हो चुका है, अकाउंट बंद हो चुका है, लॉस हो चुका है, सब पत्ती हुई. 3-4 साल बाद उसके बाद पैसा आया, कहीं से तो धंधा चल गया, पैसा आया, उसको याद आया हाँ मेरे को इसको पैसा देने का है. कहीं से भागता भागता हुआ आया, बोला सर जी आपका 200 रुपया बाकी था, ये ले लो, ये ले लो. तो क्या आई वॉज एक्सपेक्टिंग एनी मनी फ्रॉम हिम? आई हैड क्लोज दिस अकाउंट व्हाइल अगो, राइट? तो मैं कुछ एक्सपेक्ट, फिर भी मेरे को आके पैसा देके गया. बोलेगा ठीक है चांदी. तो पैसा आया कि गया? कैश बढ़ा, डेबिट. और ये क्या हुआ? गेन हुआ कि लॉस हुआ? इनकम हुआ. व्हाट इज दिस इनकम कॉल्ड एज? दिस इनकम इज कॉल्ड एज बैड डेट्स रिकवरी. इट इज कॉल्ड एज बैड डेट्स रिकवरी. तो अकाउंट हम लोग यूज करते हैं जैसे हम लोग कमीशन रिसीव करते हैं तो कैश एंड कमीशन. इंटरेस्ट रिसीव करते हैं कैश एंड इंटरेस्ट. रेंट रिसीव करते हैं कैश एंड. तो बैड डेट्स रिकवर करते हैं तो कैश एंड बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट. आइदर यू राइट बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट या बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. बैड डेट्स रिकवरी या बैड डेट्स. दिस इज अनएक्सपेक्टेड अमाउंट. आ गया, जैसे लॉटरी गेन हो गया वैसे आप गेन रिकॉर्ड करते. इज दिस क्लियर? वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मनी. अच्छा, विल यू राइट कैश टू अजय या कोई भी बंदा है जो नाम दिया है तो नाम लिखोगे? नहीं. इनकम. रीजन क्या है? बैड डेट रिकवरी. अजय का नाम नहीं लिख सकते क्योंकि उसका अकाउंट अभी हमारे बुक्स में नहीं है, बंद हो चुका है कब का. बराबर है? तो किसी से भी आए बैड डेट रिकवरी कोई फर्क नहीं पड़ता. आपका एंट्री होगा कैश टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट. कैश टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट कितना? 200. इधर कहीं पार्टी का नाम आएगा नहीं, बंद हो चुका है. बीइंग बैड डेट रिकवर्ड. बीइंग बैड डेट रिकवर्ड. इज दिस क्लियर? So that's it all for the day. Next lecture will start with shares वाले entries. shares खरीदने का, shares बेचने का. Okay? Interesting. So the share का जो 2% लागू दर पे 50 એટલે જેટલા shares લીધા છે એના પર હોય. Enough. Brokerage ना? ના brokerage. वाह, brokerage के ना 2%. Brokerage. Okay, all for the day we stop. Thank you. और कुछ होमवर्क नहीं है, कुछ होमवर्क नहीं है. रिवाइज करो बराबर से सब लोग. और सीईटी के लिए प्रिपेयर करना है तो उसका प्रैक्टिस करो. ठीक है, लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं. डिफरेंट ट्रांजैक्शन. तो डाउट्स है तो रुको, अदरवाइज कैन टाटा बाय बाय, सी यू टेक. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you.